ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کچن کی کھڑکی سے دھوپ کی سنہری کرنیں اندر جھانک رہی تھی۔ دھیرے دھیرے جلتے چولہے پر رکھے برتنوں سے اٹھتی بھاپ میں فاطمہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی، ایک ہاتھ سے چائے کا پانی چڑھاتے اور دوسرے ہاتھ سے کاؤنٹر صاف کرتی جا رہی تھی۔ اس کی حرکتوں میں روانی تھی جیسے برسوں کی مشق ہو۔ وہ اپنے کام میں اس قدر محو تھی کہ کچن کا دروازہ کھلنے کی آہٹ بھی نہ سن سکی۔ کیا ہو رہا ہے میری جان؟ فاطمہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر بڑی بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا انداز شفقت بھرا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ امی جان، آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ مجھے بلا لیتی نا۔ کل بھی آپ کی طبیعت کتنی خراب ہو رہی تھی، اب پاؤں کا درد ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ہاں لاڈو، میرے پاؤں کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تمہارے بابا جان کا حکم ہے، انہیں چائے پینی ہے، وہی بنانے آئی ہوں۔ جبکہ وہ فوراً بولی، آپ کیوں بنائیں گی؟ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ بالکل بھی آپ کو اپنی صحت کا خیال نہیں۔ ایک آپ ہی تو ہیں جس سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ایک آپ ہی تو ہیں جس کے دم پر میں سب سے الجھ جاتی ہوں، اگر آپ کا سایہ میرے سر پر نہ ہوا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور آپ کے وہ جلاد بیٹے، انہیں مجھے پریشان کرنے کا لائسنس مل جائے گا، وہ تو میرا خون پی کر ہی مجھے مار ڈالیں گے۔ سمرین بیگم آگے آئیں اور کہا لگا کر ہنسی، اللہ اللہ، تم نے بیٹھے بٹھائے مجھے مار دیا، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اور میرا جلاد بیٹا تمہیں کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں پریشان کرتا ہے؟ لیکن تم مانو یا نہ مانو، اس کے دل میں تمہارے لیے بہت فکر ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، ایسا صرف آپ کو لگتا ہے، وہ تو مجھے صرف اور صرف اس گھر کی ملازمہ مانتے ہیں۔ جبکہ وہ بولی، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ صرف تمہیں تنگ کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا چلو اب مجھے چائے بنانے دو، تم ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ مزید قریب آ کر وہ چولہے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ نہیں امی، آپ نہیں بنائیں گی، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ فوراً سے بولی، ارے نہیں گڑیا، کتنا کام کرتی ہو تم بھی، ایک چائے ہی تو بنانی ہے، میں خود بنا لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور تمہیں زاہد صاحب کا نہیں پتا کہ ان کو کسی اور کے ہاتھ کی چائے پسند نہیں، فضول میں نخرے کرتے ہیں، چینی کم ہے، پتی کم ہے، دودھ زیادہ ہو گیا۔ ان کی باتیں سننے سے بہتر ہے میں خود بنا لوں، اور ویسے بھی کافی دن ہو گئے انہیں اپنے ہاتھ سے چائے پلائے ہوئے، اس لیے سوچا آج میں ہی بنا لوں، خوش ہو جائیں گے۔ اتنے دنوں بعد انہوں نے آج آف لیا ہے، تھوڑی بہت خدمت کرنی تو بنتی ہے۔ وہ پتیلی چولہے پر چڑھاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ ہنس پڑی۔ وہ انہیں چھیڑنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، شرم کرو، ماں باپ کو چھیڑتی ہو؟ جبکہ وہ ان کے پاس کھڑی ہوتے بولی، ہاں کیوں، میرے ماں باپ اپنے ہیں اور ان کے ساتھ میں چھیڑ خانی کر سکتی ہوں۔ ویسے آپ کی بات غلط ہے، بابا کو میرے ہاتھ کی پسند تو آ جاتی ہے، اب آپ مانے یا نہ مانے۔ وہ لاڈ سے بولی، پچھلی بار بھی چائے پی کر جیب سے کڑک نوٹ نکالے تھے، کہنے لگے فاطمہ کی چائے میں محبت کا ذائقہ ہوتا ہے، میری لاڈو جیسی چائے کوئی اس دنیا میں بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ اٹھلا کر بولی تھی، کہنے کو اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت تھی اس کی، مگر یہاں کے رہنے والے مکین اسے اتنا چاہتے تھے کہ کبھی اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ سمرین بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر پیار سے چپت ماری، باپ کبھی بیٹیوں کے کھانے یا چائے کی برائی نہیں کرتے، یہ تو ان کا پیار ہوتا ہے، لیکن بیوی بہن کو تنگ کرنا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتے ہیں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا پانی سمرین بیگم کے سپرد کیا اور ایک طرف ہو گئی اور خوش اخلاقی سے بولی، یہ تو میرے بابا کا بڑا پن ہے، ورنہ بھلا کون اتنی اہمیت دیتا ہے؟ اچانک ہی اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ یہ بات سمرین بیگم نے محسوس کی تھی، مگر وہ اسے مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی،
नजर उठाकर देखा तो वो चाय बनाने में मसरूफ हो गई थी। दिमाग में कई तरह के सवालात चल रहे थे। क्या पूछ लूं? अगर इनकार कर दिया फिर? चंद लम्हों बाद उसने हिम्मत जमा की और आहिस्तगी से बोली, अम्मी जान, एक बात पूछनी थी। समरीन बेगम ने नजर उठाई। अंदाज मसरूफ सा था। फातिमा की आवाज मजीद धीमी हो गई। आपने बाबा से इजाजत ली थी मेरे लिए? दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। उसे घबराहट हो रही थी। खौफ के मारे उसकी हथेलियां भीग चुकी थीं। समरीन बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ सवाया लहजे में बोली, किस बात की इजाजत? अंदाज जरा तफ्तीशी भी था। फातिमा के हाथ का दुपट्टा उसकी उंगलियों में उलझने लगा। वो चंद लम्हे खामोश नजरें झुकाए रही, फिर बोली, आपको बताया था ना हमारा कॉलेज ट्रिप पर जा रहा है। मरी और मेरी सारी दोस्तें, मेरी पसंदीदा टीचर्स सब जा रहे हैं। लम्हा भर के लिए लहजा गड़बड़ाया था, लेकिन वो हिम्मत जमा करते हुए अपना मुद्दा उनके सामने बयान कर गई। समरीन बेगम ने चाय की पत्ती डालकर चम्मच हिलाया, फिर बोली, हाँ याद है, इजाजत मांगी थी मगर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है तुम अभी बहुत छोटी हो और मैं भी उनके हक में हूं। तुम्हारा इतना दूर तन्हा जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया। फातिमा का चेहरा लम्हा भर को बुझ गया। वो चंद लम्हों बाद बोली, मगर अम्मी, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं। अब जिन टीचर से मुलाकात कर चुकी हैं वो भी जा रही हैं। कोई परेशानी की बात नहीं। प्लीज मुझे जाने दें, मेरा बहुत मन है। जबकि वो कंधे उचकाते हुए बोली, देखो गुड़िया, मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी लाडो को उसी दिन इजाजत दे देती। मुझे याद है तुम कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन बेटा मैं बेबस हूँ। तुम्हारे गार्डियन तुम्हारे बाबा हैं। उनकी इजाजत के बगैर तुम इस हवेली से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए बेहतर है तुम चुप हो जाओ। और हाँ, अगर अब भी तुम्हें इतना शौक है जाने का तो एक बार खुद जाकर पूछ लो। शायद बेटी का सामना करके उनका दिल पिघल जाए और वो तुम्हें जाने की इजाजत दे दें। वो फराग दिली से बोली। इसका बुझा हुआ चेहरा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। फातिमा ने आंखों में उम्मीद की चमक ली, धीरे से इस बात में सर हिलाया और बोली, अच्छा ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ। क्या पता मेरे कहने से राजी हो जाएं। लहजे में एक उम्मीद सी थी। समरीन बेगम ने सर को हल्की जुम्बिश दी, बल्कि फौरन ही बाहर की तरफ निकल गई। फातिमा उनके पुराने माली की बेटी थी, जिसके माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। तब से समरीन बेगम और उनके शौहर ने इसे बेटियों की तरह पाल रखा था। सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, मगर कोई उसे नौकरानी नहीं कहता था। वो इस घर में फखर से चलती। एक बेटी थी, लेकिन एक था जिसकी नजरों में वो हर वक्त खटकती रहती थी। दोपहर के वक्त कमरे की खामोश फिजा में धीरे से दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजी। अंदर से एक मानूस और मजबूत सी आवाज आई, आ जाओ। वो किचन से सीधा उनके कमरे के पास आ गई थी। वो मजीद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ट्रिप निकलने में कुछ ही दिन बाकी थे। फातिमा ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। अंदर सोफे पर जाहिद साहब नीम दराज हालत में बैठे थे। गोद में अखबार फैला हुआ था। उनके चेहरे पर संजीदगी की पुरानी झुर्रियां वैसे ही थी, लेकिन आंखों के किनारों पर एक नरम सी रोशनी थी जो सिर्फ अपनी औलाद को देख कर आती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो बुलंद आवाज में प्यार से बोली। उनके हाथों में थमा अखबार नीचे हो गया। नजरें उसकी तरफ उठी और वो धीरे से मुस्कुराए। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी गुड़िया को हमारी याद कैसे आ गई? सारा दिन तो काम में लगी रहती हो, बाबा को तो भूल ही गई हो। वो फौरन ही शिकवा कर गए। सुबह से ये वक्त हो गया था, उन्होंने अभी तक फातिमा को नहीं देखा था। आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए उन्होंने आज ऑफिस जाने से गुरेज किया था। फातिमा के लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आई। जी नहीं बाबा जान, मैं हर वक्त आपकी फिक्र में हलकान होती रहती हूँ और आपको याद करती रहती हूँ, बल्कि मेरे बाबा को मेरी याद नहीं आती। आप मसरूफ रहते हैं सारा दिन और बेवजह इल्जाम मुझे दे रहे हैं, हालांकि ये नाइंसाफी है। जबकि वो हंसे। वो मजीद बोली, वैसे हैरत है, आज घर पर है, लगता है चाय की खुशबू खींच लाई है। वो उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आई थी। जाहिद साहब खिलखिलाकर हंस दिए। उनकी हंसी में एक बाप की नरमी और प्यार छुपा हुआ था। हाँ बस, आपकी अम्मी जान के हाथ की चाय की बात ही अलग है। ऑफिस में दिल ही नहीं लगा,
जबकि वो खिलखिलाई। वो अभी कुछ और कहते कि फातिमा लाड से बोली, बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। उसे मालूम था जाहिद साहब उसूल के बहुत पक्के इंसान हैं। वो कभी भी अपनी बात से हरगिज नहीं हटते और यही चीज इसे खौफजदा कर रही थी। जाहिद साहब ने अपनी नजर अखबार से हटाई और उसके चेहरे की तरफ देखा। फातिमा की आंखों में हल्की सी झिझक, आवाज में नरमी और लबों पर अधखुला सा सवाल था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे, बात का आगाज कहाँ से करे। उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखकर जाहिद साहब बात की नौयत समझ गए थे। वो उसको देखते हुए बोले, जो भी बात है भिला झिझक कहो। अगर मुनासिब हुई तो हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे और अगर नामुनासिब हुई तो माजरत। उसने एक हिचकिचाती हुई नजर जाहिद साहब पर डाली और सर झुकाकर बोली, बाबा मैं पिकनिक पर जाना चाहती हूँ। आपको अम्मी ने बताया होगा कॉलेज से 2 दिन का ट्रिप जा रहा है मरी की तरफ। सब लड़कियां जा रही हैं, मेरी सहेलियां भी और मेरी सारी टीचर्स सब बहुत खुश हैं बाबा। मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे मरी देखने की बहुत ख्वाहिश है। वो एक लम्हे को रुकी, फिर तेजी से बोलती चली गई जैसे वक्त कम हो। और मैं पक्का वादा करती हूँ हर चीज का ख्याल रखूंगी, कोई भी गैर जिम्मेदारी नहीं करूंगी। अम्मी ने बताया था कि आपने मना कर दिया, लेकिन बाबा प्लीज आप इजाजत दे देना, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। हर वक्त आपसे राब्ते में रहूंगी। जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी जगह घूमने का मौका मिल रहा है, इनकार मत करें। उसको समझ नहीं आ रहा था वो उनको कैसे राजी करे। आज से पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया था। जाहिद साहब ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ एक नजर डाली। उनके चेहरे का रंग बदला नहीं, अंदाज नरम होने के बजाय मजीद संजीदा हो गए थे। वो अपने उसूलों के खरे इंसान थे, कभी भी अपनी बात से हरगिज नहीं हटते थे और ना ही इस बार हटने का इरादा रखते थे। वो उसकी जानिब देखते हुए मध्यम लहजे में बोले, नहीं मेरी जान, आप उदास हो जाएं, चेहरे पर मुरझाहट ले आएं या फिर आंखों में आंसू लेकर हमसे बात करें, इस चीज की इजाजत आपको हरगिज नहीं मिलेगी। मेरी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं इसे इतनी दूर 2 दिन के लिए भेज दूं। अगर सुबह से शाम तक का प्रोग्राम होता तो अलग बात थी, मगर 2 दिन बिल्कुल नहीं। अगर इस बात की खबर हमदान को हुई तो वो भी बहुत गुस्सा करेगा। आप इस घर की बेटी हैं, बेशक आप मेरा खून नहीं, लेकिन मैं आपको बेटी मानता हूं और मैं अपनी बेटी को इतनी आजादी देने का कायल नहीं हूं। फातिमा का चेहरा बुझने लगा, आंखों की चमक मध्यम हुई और लब कपकपाए। बाबा प्लीज जाने देना, आपको मेरी कसम, आपके बगैर कुछ नहीं करूंगी। हर वक्त दोस्तों के साथ रहूंगी, आपको फोन करती रहूंगी हर घंटे बाद। जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा है। मैं जानती हूं आप उसूलों के बहुत पक्के हैं, लेकिन बेटी की खातिर उसूल छोड़ दें प्लीज। वो उन्हें किसी भी तरह राजी करना चाहती थी, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल तरीन अमल था। वो जाहिद खानजादा थे जिनके लिए उसूल ही सब कुछ थे। इस बार जाहिद साहब का अंदाज कुछ सख्त हो गया। वो अखबार दोबारा उठाते बोले, कहा ना नहीं, अब जिद ना करो, मैं मसरूफ हूं, जाओ। उन्होंने इस बार कोई रियायत नहीं की। उन्हें मालूम था अगर उन्होंने जरा भी रियायत की तो वो मजीद फैल जाएगी, फिर उनके लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फातिमा की आंखों में आंसू उतर आए। वो चुपचाप पीछे हटी, दरवाजे तक आई, मगर कुछ कहे बगैर पलट गई। कदम भारी थे, दिल जख्मी और आंखें नम। वो जानती थी इनकार में सिर्फ सख्ती नहीं, एक बाप की फिक्र, खौफ और तहफ़्फ़ुज़ छुपा था। मगर कभी कभी औलाद को समझने के लिए अल्फाज से ज्यादा कुर्बत चाहिए होती है, और इस वक्त उसे ये कुर्बत महसूस नहीं हुई थी। शाम की हवा में हल्की सी खूनकी घुल चुकी थी। आसमान पर सूरज मगरिब की जानिब झुक चुका था और महलनुमा घर की राहदारियों में एक मध्यम सी रोशनी ने जगह ले ली थी। फातिमा घर के दाखिली दरवाजे से निकली तो उसके कदम तेज थे, आंखें भीग चुकी थी और दिल में एक अजीब सा बोझ था। सर झुकाए वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक एक सख्त सी छाती से उसका वजूद टकरा गया। नाक बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई। अभी वो पीछे की जानिब गिरती, मगर अगले ही लम्हे एक मजबूत बाजू ने उसकी कमर को थाम लिया।
اگر وہ نہ تھام لیتا تو وہ یقینی طور پر زمین پر جا گرتی۔ فاطمہ کے لبوں سے بے اختیار ہلکی سی سسکی نکلی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ چند لمحے دونوں اسی حالت میں رہے۔ وہ آنکھیں موندے خوف سے ہولے ہولے لرز رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اسے خاموشی سے تکتا جا رہا تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ حمدان خانزادہ، زاہد صاحب کا بڑا بیٹا، وجیح اور سنجیدہ مزاج تھا۔ اسی لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا، آنکھوں میں اپنائیت، وہ اپنائیت جس کا ادراک شاید خود اسے بھی نہیں تھا۔ فاطمہ کو جب ہوش آیا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ حمدان کی باہوں میں ہے، وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی اور خود کو آزاد کیا۔ شرم کے باعث اس کا چہرہ لال انار ہو گیا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، معافی سائیں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی بغل سے نکل کر جانا چاہتی تھی، جب اس نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا اور اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اندھوں کی طرح کہاں بھاگتی جا رہی ہو؟ حمدان کی آواز سخت تھی، آنکھوں میں غصہ، شاید فاطمہ کے رویے سے زیادہ اپنے اندر کے الجھاؤ پر تھا۔ کچھ دنوں سے جو بے چینی اسے اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی، وہ ہی جانتا تھا۔ فاطمہ نے سر جھکایا، دوپٹہ سنبھالا اور دھیرے سے بولی، معاف کرنا حمدان سائیں، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ جلدی سے کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کو کس طرح سنبھالے، کیونکہ یہ انسان ہمیشہ اسے ذلیل کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ وہ سادگی سے نکل نہیں لگی تھی کہ حمدان نے اچانک اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، نگاہوں میں ایک غیر واضح سی شدت۔ کس بات کا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے تم میں؟ اس گھر کی ملازمہ ہو، اپنی اوقات میں رہا کرو، اور مجھ سے بہانے سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہاں دال نہیں گلنے والی۔ میں حمدان خانزادہ ہوں، تم جیسوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اس کی آواز بلند تھی، آنکھوں میں جیسے آگ دہک رہی تھی۔ فاطمہ نے بے ساختہ جواب دیا، میں نے اب کیا غلطی کر دی حمدان سائی؟ میں تو معافی مانگ کر جا رہی ہوں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا اس انسان کو اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ حالانکہ وہ اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، جہاں وہ ہوتا وہ فوراً اس جگہ سے غائب ہو جاتی تھی۔ حمدان کی سانسیں تیز ہو گئی۔ احسان کر رہی ہو معافی مانگ کر؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا مت۔ اس کا نظر انداز کرنا اسے آگ لگا رہا تھا۔ اس کے بار بار جانے کی بات نہ جانے کیوں اس کے دل کو مچلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ فاطمہ خاموش ہو گئی، سر جھکا لیا۔ لمحے گزر گئے، خاموشی کے سناٹے میں صرف سانسوں کی آواز باقی رہی تھی۔ پھر حمدان کی آواز کچھ نرم ہوئی، روئی کس بات پر ہو؟ وہ اس کی گال پر میٹے میٹے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر بولا تھا۔ فاطمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں صاف تھیں مگر پلکوں پر نمی اب بھی باقی تھی۔ وہ چونکی کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات حقیقت تھی، وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نوٹ کر لیتا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر سر نفی میں ہلایا، نگاہ چرائی اور پلٹ کر تیزی سے قدم اٹھا لیے۔ اسے لگا اگر مزید رکی تو دوبارہ آنسو بہہ نکلیں گے۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس بار اس نے اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ حمدان وہیں کھڑا رہ گیا، اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی پشت پر نظریں جمائے وہ خود سے گویا ہوا، تم سے خوب نفرت ہے مجھے، لیکن نہ جانے کیوں جب تم روتی ہو میرا دل جلنے لگتا ہے۔ نہ جانے یہ کیا احساس ہے۔ اگر یہ محبت کا احساس ہے تو یاد رکھنا فاطمہ گلزار، تمہاری جان عذاب کر دوں گا۔ فضا میں اس کے لہجے کی الجھن گھل گئی، جیسے دل نے زبان کو بہت کچھ کہنے سے روک دیا ہو۔ کمرے میں گہرے رنگ کے پردے نیم کھلے تھے، جن سے روشنی مدھم انداز میں اندر آ رہی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر لکڑی کا شیلف کتابوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک طرف گہرا صوفہ، جہاں زاہد صاحب حسب معمول اپنا اخبار لیے نیم دراز بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سمرین بیگم چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئیں، وہ فوراً خبردار ہو گئے اور اخبار کو مکمل فولڈ کر کے میز پر رکھ دیا۔ ان کی بیوی کو ان کی نظر اندازی بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے ان کے سامنے وہ اپنا ہر کام کرنے سے گریز کرتے۔ سمرین بیگم نے آہستگی سے چائے کی ٹرے لکڑی کے میز پر رکھی اور دھیمے لہجے میں بولی، آپ بہت ضدی ہیں زاہد صاحب، کتنا اس بچی کو تنگ کر رہے ہیں، جانے کی اجازت دے دیں اسے، بہت من لگا ہوا ہے اس کا، ابھی بھی روتے ہوئے نکلی ہے آپ کے کمرے سے، یقیناً آپ نے منع کر دیا ہوگا۔
वो अंदाजन बोली थी कि जिन से निकलते वक्त उनकी नजर उनकी रोई हुई आंखों पर गई थी और वो उसी पल समझ गई थी कि मामला बिगड़ गया है। जाहिद साहब ने चाय का कप उठाया, एक लम्हे को रुककर संजीदगी से बोले, कितनी फजूल बात कर रही हो। मन लग गया है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं उसे अजाब में झोंक दूं। मैंने इसीलिए उसकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली थी कि वो कुछ भी करती रहे और मैं कुछ ना बोलूं। अगर वो मेरे खानदान का हिस्सा है तो उसे मेरे खानदान की बेटियों की मानिंद ही रहना होगा। जबकि वो फौरन बोली, जी जी जाहिद साहब, मैं आपकी हर बात समझ रही हूं, लेकिन वो जानना चाहती है। उसकी दोस्तें, उसकी टीचर सब जा रहे हैं तो आपको क्यों एतराज है? हमारा हमदान भी तो जाता है, आपने कभी उसके लिए एतराज नहीं जताया? वो बहुत नरम दिल खातून थी, किसी का रोना उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो उनके लिए उनकी बेटी थी, भला उसका रोना वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? अजीब बात करती हैं आप बेगम। हमदान लड़का है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, 27 साल का है, और ये इतनी छोटी सी और कितनी बेवकूफ। कोई भी इसे आसानी से पागल बना सकता है। तुम जानती हो ना उसकी उम्र क्या है? अभी कुछ दिन हुए 19 साल की हुई है। ऐसे कैसे भेज दूं उसे? अजनबी लोगों के साथ मरी। मैं जिम्मेदार हूं उसका, और अभी इतनी बड़ी नहीं हुई जो वो अपने फैसले खुद करे। जब तक मैं जिंदा हूं उसे मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। इस तरह की आज़ादी मेरे पास नहीं है। इधर आपको लगता है कि वो माली की बेटी है, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूं, तो आप अपनी सोच बदल लें। अगर वो मेरा सगा खून भी होती तब भी मैं उसे इजाजत नहीं देता। बेटियां बाप के साए में ही रहें तो ज्यादा बेहतर होता है, वरना बाहर की दुनिया उन्हें नोच खाती है। समरीन बेगम ने धीरे से गहरी सांस ली। उसे मरी जाने का बचपन से शौक है, आपको अंदाजा नहीं। अक्सर मेरे साथ उसकी बात होती है इस बारे में। मैं मानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव जरूरी होता है। जाहिद साहब ने एक हल्की चुस्की ली, फिर नरमी से बोले, हम किसी दिन खुद फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाएंगे, फिर मैं ले जाऊंगा उसे, लेकिन अभी नहीं। अजनबियों के साथ मैं उसे बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। समरीन बेगम ने थोड़ा सा झुककर उनकी तरफ देखा। अरे जाहिद साहब, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं, उसका दिल टूट जाएगा। अभी उनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजा खुला और अंदर हमदान खानजादा दाखिल हुआ, और दाखिल होते ही संजीदगी से बोला, बिल्कुल ठीक मना कर रहे हैं बाबा, कोई जरूरत नहीं उसे कहीं भी भेजने की। इतनी बड़ी कहाँ हो गई है वो जो मरी जैसी जगह पर जाए उन बेपरवाह लड़कियों के साथ? हमारी जिम्मेदारी है वो, और इस तरह घर के मर्दों के बगैर बेटियां बाहर नहीं जाती। समरीन बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, चेहरे पर नागवारी उभर आई। बहुत जल्दी तुम्हें जिम्मेदारी याद आ गई? हर वक्त तो ताने देते रहते हो उसे मुलाजमा होने का। कितनी बार कहा है तुम्हें, इस तरह मत बोला करो। वो मुलाजमा नहीं, मेरी बेटी है। हमदान फौरन पलटकर माँ की बात काटते हुए बोला, हाँ हाँ आपकी बेटी है, इसलिए तो मना कर रहा हूं। आपका मान है वो, है ना? तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। इनकार में ही उसकी बेहतरी है। आपका फैसला बाबा दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूं। जाहिद साहब ने हल्की जुम्बिश में सर हिलाया, जैसे बेटे की तायीद कर रहे हों, जबकि वो उन्हें देखते हुए बोला, आपकी तबीयत ठीक है? इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गए? जबकि वो बोले, कुछ खास नहीं, तुम्हारी माँ के हाथ की चाय हमें खींच लाई है, चलो तुम भी ले लो। जबकि वो सरनफी में हिलाते खड़ा हुआ, आप लोग एंजॉय करें, मैं चलता हूँ, एक फाइल लेनी थी और आपसे मिलना भी था, इसीलिए आ गया। ये कहते ही वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो चुका था। रात के 1:30 बजे घर की राहदारियों में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुई की टिक टिक और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज फिजा को मजीद सुनसान बना रही थी। पूरे घर की लाइट्स बंद थी, बस किचन की जर्द रोशनी बाहर हॉल तक आ रही थी। किचन के काउंटर पर एक प्लेट रखी थी जिसमें आधी रोटी और सालन रखा था। फातिमा दुपट्टे को कंधे पर संभाले नीचे नजरें झुकाए खामोशी से नवाला बनाकर खा रही थी। चेहरे पर उदासी की थकन और आंखों में नींद के साथ साथ दुख भी झलक रहा था। अचानक दरवाजे के करीब कदमों की आहट सुनाई दी
और अगले लम्हे हमदान खानजादा किचन में दाखिल हुआ। वो चौंकी, पलटी और जैसे ही उसे देखा उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकलने वाली थी कि हमदान ने फौरन लपक कर अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। नजरें उसकी खौफजदा निगाहों से मिली थी। हमदान का दिल काफी शिद्दत से धड़का। फातिमा की सांसें बेतरतीब हो गईं। लम्हे बाद जैसे उसे होश आया तो वो उसको देखते हुए धाड़ कर बोला, पागल हो गई हो, पूरे खानदान को जगाना चाहती हो। उसका सख्त लहजा देखकर वो होश में आ गई। उसकी आंखों में संजीदगी थी, आवाज दबी हुई मगर सख्त। चंद लम्हे इसी हालत में गुजरे, फिर वो बोला, हाथ हटा रहा हूं, अब शोर मत मचाना, फजूल में ड्रामा कर रही हो। वो हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता था, खासकर जब से उसका दिल इसके इख्तियार से बाहर जाने लगा था। फातिमा ने सरासीमगी से सर हिलाया। जैसे ही उसने हाथ हटाया वो तेजी से एक कदम पीछे हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला खुश्क और आंखें हैरत में डूबी हुई थी। रात के 1:30 बजे उसका किचन में आ जाना न जाने क्यों इसे घबराहट में मुब्तला कर गया। ये शख्स उसे बिल्कुल समझ नहीं आता था। हमदान ने बाजू सीने पर लपेटे और उसे घूरते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त इतनी रात को? मालूम नहीं मुलाजिम भी घर में होते हैं। कितनी बार तुम्हें समझाया है रात को वक्त क्वार्टर में रहा करो। वो नजरें चुरा कर बोली, मुझे भूख लग रही थी, खाना खाने आई थी और अम्मी जान ने तमाम मर्द मुलाजिम को हवेली के अंदर आने से रोका हुआ है, कोई भी इस तरफ नहीं आता। बाबा ने भी एक दफा गार्ड को सख्त डांटा था, किसी की भी हिम्मत नहीं कि रात के वक्त वो इस तरफ आए। हमदान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। जवाब तुम्हारे पास पहले से तैयार होते हैं, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। और वैसे भी जब अम्मी ने तुम्हें बुलाया था तब कहाँ थी? तब तो मोहतरमा कह रही थी नहीं खाना मुझे खाना। अब छुप छुप कर आधी रात को खा रही हो। बहुत ही कोई तेज लड़की हो तुम। फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, आपको मालूम है ना मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने गुस्से में इनकार कर दिया था, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया, इसीलिए आ गई। और नाराजगी भला खाने से कौन करता है? बाबा कहते हैं रात का खाना खाकर सोना चाहिए, वरना आपके जिस्म से चिड़िया जितना गोश्त कम हो जाता है। उसकी मासूम सी वजाहत पर हमदान का दिल एकदम नरम पड़ गया। वो उसकी सादगी से वाकिफ था, जानता था कि फातिमा झूठ नहीं बोलती, उसे बहाने भी नहीं बनाने आते। खामोशी से कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, किस बात पर इतना गुस्सा था जो खाने से इनकार किया? न जाने क्यों वो बात को तूल दे रहा था। फातिमा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर नजरें नीची किए बोली, बाबा आपको हर जगह जाने देते हैं, आपका हर हुक्म मानते हैं, और एक मैं हूं, एक मामूली सा कॉलेज ट्रिप जा रहा है मरी का, जहां मेरी सहेलियां सब जा रही हैं। मैं भी जाना चाहती थी, थोड़ा सा मजा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सख्ती से मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं, इतनी बड़ी नहीं हुई कि अकेले ट्रिप पर जाओगी। उसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन अल्फाज वाज़ेह थे। हमदान के चेहरे पर संजीदगी लौट आई। तुम इस घर की मुलाजमा हो और मैं इस घर का बेटा, इस फर्क को हमेशा समझा करो। समझ आई? और बिल्कुल ठीक मना किया है। तुम जितनी बेवकूफ हो वहां जाकर भी तुमने कोई ऐसी हरकत करनी है जो हम सबको शर्मसार कर दे। उसकी आंखों में सर्दी थी और लहजा पथरीला। फातिमा ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, आंखें हैरत और दुख से भीगी हुई थी। कुछ कहना चाहा मगर जबान साथ ना दे सकी। हमदान पलटा और खामोशी से वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जानबूझकर वहां नहीं ठहरा था, क्योंकि जानता था कि अगर मजीद कोई कड़वी बात जबान से निकली तो वो फिर रात भर रोएगी, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। फातिमा वहीं खड़ी रह गई, दिल जैसे भारी हो गया हो। उसके हाथ में रोटी का नवाला अभी भी वैसे ही था, मगर अब वो भूख कहीं गायब हो चुकी थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम पाई है और न कभी थम सकेगी। 2 दिन बाद दोपहर की तेज धूप खिड़कियों के रास्ते अंदर झांक रही थी। लाउंज की बड़ी खिड़कियों पर सफेद पर्दे आधे सिरके हुए थे और धूप की सुनहरी लकीर कालीन पर रेंग रही थी। पूरा माहौल साकित था, सिर्फ सफाई की आवाजें सुनाई दे रही थी। फातिमा जमीन पर झुककर कालीन पर हाथ चला रही थी। कभी कुशन दुरुस्त करती, कभी मेज पर रखे शोपीस को उठाकर साफ करती। दुपट्टा बार बार सर से सरकता तो वो झंझलाहट से उसे दोबारा जमा देती। वो कभी भी अपने दुपट्टे से लापरवाही नहीं करती थी।
ये ऑर्डर उसे किसी ने नहीं दिए थे, मगर वो खुद अपनी हिफाजत करना जानती थी। चंद लम्हों बाद अचानक दरवाजा खुला और हमदान बिना कुछ कहे लाउंज के सोफे पर आकर बैठा। वो चौंकी, एक लम्हा उसे देखा, फिर नजरें चुराकर दोबारा से काम में लग गई। लेकिन वजूद में एक बेचैनी सी उतर आई थी। उसे काम करते वक्त कमरे में कोई नहीं चाहिए होता था। कोई भी मुलाजिम कमरे में होता तो वो उसे निकाल देती थी। अब उसे सोफों की झाड़ पोंछ करनी थी, मगर उसे बैठा देखकर अब हलकान हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो हिचकिचाती हुई बोली, हमदान साईं, मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। अगर आप अभी। वो मजीद कुछ कहती, उससे पहले ही हमदान ने तंज भरी नजरों से उसे देखा और आवाज ऊंची करके बोला, मैं? तुम कहना चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं? तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम इस घर के मालिक को उसके अपने लाउंज से निकाल दो? उसको ये बात मालूम थी, फातिमा को सफाई करते वक्त कोई नहीं पसंद। जानबूझकर वो उसे सताने की खातिर बैठा था और अब बिला वजह उलझ रहा था। फातिमा फौरन घबरा कर बोली, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस कहना चाह रही थी। वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई कि वो तेज लहजे में बोला, क्या कहना चाह रही थी? कि तुम इस घर की मालकन हो और मैं नौकर? वो बेवजह लफ्जों से लफ्ज जोड़कर उसको मुश्किल में डाल रहा था। उसके बदलते हुए रंग न जाने क्यों इसे खूब मजा दे रहे थे। जानबूझकर उसने अपना अंदाज सख्त बना लिया था। वो परेशान होकर बोली, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको एक दफा भी ऐसी कोई बात नहीं कही। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी, इसीलिए आपसे। लेकिन वो दोबारा बिगड़ गया। गुस्से से उठकर आया और उसका बाजू सख्ती से थाम लिया। अपनी बकवास बंद रखो, ये ना हो कि तुम्हें इस घर से ही निकलवा दूं। माफी मांगो मुझसे। उसे वो बात मुकम्मल करने की मोहलत तक नहीं दे रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था वो खुद नहीं जानता था। सब लाशऊरी तौर पर हो रहा था। 2 दिन से उसने किसी से बात नहीं की थी, हर एक से नाराज नाराज घूम रही थी। यही वजह थी कि वो बिला वजह उससे उलझकर उसके अंदर के गुस्से को निकालना चाहता था, ताकि वो वापस अपनी रूटीन पर आए। लेकिन दूसरी जानिब वो परेशान हो रही थी। उसका रवैया लाशऊरी तौर पर इसे तकलीफ पहुंचा रहा था। फातिमा का दिल दहल गया, आंखों में नमी तैरने लगी। वो सर झुकाते हुए मध्यम लहजे में बोली, मुझे माफ कर दें हमदान साईं, मैंने गलत किया। इस बार उसने बहस नहीं की थी, वरना माफी पर वो हमेशा बहस करती थी। हमदान नाक सुकेड़ कर बोला, माफी मांगने से बेहतर है तुम अपनी हैसियत तस्लीम कर लो। याद रखो, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे सच बोलने पर नरम पड़ जाऊं। उसको आसानी से माफी मांगता देखकर भी इसे चैन नहीं आ रहा था। फातिमा की पलकों से एक आंसू गिरा और कालीन में जज्ब हो गया। वो लरसती हुई आवाज में बोली, मुझे कोई नौकर नहीं समझता, सब मुझे बेटी समझते हैं। और बाबा कहते हैं फातिमा मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी, और अम्मी भी यही कहती हैं। अभी वो मजीद कहती, उससे पहले ही वो धाड़ा, किसी के समझने से कुछ नहीं होता। मैं समझता हूं तुम्हें नौकर। तुम्हारी हैसियत मेरे सामने एक नौकर की मानिंद है, समझ आई? और अब बहुत हो गई तुम्हारी काम चोरी। कल से मेरे कमरे की सफाई तुम करोगी। अगर तुम्हारे अलावा कोई और मुलाजिम मेरे कमरे में आया तो याद रखना, तुम्हें घर से निकालने में मैं सिर्फ एक लम्हा लगाऊंगा। फातिमा ने हारे हुए अंदाज में सर हिलाया और पीछे हटने लगी। आंखों में नमी जमा हो गई थी। उसकी आंखों में नमी देखकर इसने अचानक उसका हाथ थाम लिया था। वो उसकी दिल आजारी नहीं करना चाहता था, लेकिन अनजाने में वो उसे दुख दे चुका था। वो कुछ कहने को था कि फातिमा ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, मुलाजमा हूं ना मैं, तो खबरदार जो मेरा हाथ दोबारा थामा। इस बार उसका लहजा तल्ख हो गया था। उसकी आंखों में हकारत थी, आवाज में लर्जिश। ये कहकर वो रोती हुई पलटी और लाउंज से निकल गई। उसका दुपट्टा हवा में हल्का सा लहराया और दीवार से टकराकर गिर पड़ा, जैसे उसके अंदर की बेबसी भी वहीं गिर गई हो। हमदान वहीं खड़ा रह गया, हाथ फिजा में मौलिक, जैसे पहली बार किसी लफ्ज ने उसे चुप करा दिया हो। उसका मकसद उसे रुलाना नहीं था, मगर वो रो दी, और इस बार ये मंजर उसे वाकई बुरा लगा था। अगले रोज कमरे में शाम के साए फैलने लगे थे। सूरज की नरम किरणें खिड़की के शीशे से अंदर झांक रही थीं और कमरे में हल्की नारंगी रोशनी फैला रही थी। दीवार पर लगे घड़ियाल की सुइयां 6 बजा रही थी।
जब फातिमा दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर अंदर दाखिल हुई, हाथ में झाड़ू और चेहरे पर वही जिम्मेदारी की झलक जो हमेशा सफाई के वक्त उसके चेहरे पर होती। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, निगाह बेख्तियार सामने आईने की तरफ गई और अगले ही लम्हे एक चीख उसके लबों से निकली। वो फौरन पीछे मुड़ी और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हमदान आईने के सामने खड़ा था बगैर शर्ट के। उसकी चीख पर चौंका, फिर वो कुछ बेजार सा होकर तेजी से अपनी शर्ट उठाई और पहनते हुए सख्त लहजे में बोला, तहजीब नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें? किसी मर्द के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजा बजाया जाता है। तुम कॉलेज जाती हो, पढ़ी लिखी हो, इतना भी शऊर नहीं? शिकायत करूंगा तुम्हारी अम्मी से, कम से कम ये तुम्हें तमीज सिखाए। उसको बहुत बुरा लगा था बिना इजाजत के उसके कमरे में आना। वो सहम कर नजरें झुकाए धीरे से बोली, मुझे लगा कि आप कमरे में नहीं होंगे, माफी चाहती हूँ, सफाई करनी थी इसीलिए चली आई। वो हैरानी से बोला, तुम क्यों करोगी सफाई? बाकी मुलाजिम मर गए हैं जो तुम झाड़ू लिए फिर रही हो, और तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं ना? अम्मी बता रही थी तुम किताबों को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही। अगर ये ट्रिप की वजह से हो रहा है तो याद रखना मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा अगर रिजल्ट में जरा भी खराबी आई। फातिमा धीमी आवाज में बोली, मेरे रिजल्ट में कभी खराबी नहीं आती और मैं आखिरी वक्त में पढ़ती हूँ। और रही सफाई की बात, आप ही ने तो कल कहा था कि आपके कमरे की सफाई मैं करूंगी। अगर मैंने सफाई नहीं की तो आप मुझे इस घर से निकाल देंगे, इसलिए मैंने मुलाजमा को आपके कमरे में आने से रोक दिया था। हमदान चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया, जिसे कल के अल्फाज एकदम से याद आ गए हों। माथे पर बल पड़े मगर जबान खामोश रही। फिर वो सांस लेते हुए बोला, ठीक है, अब मैं ही कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। झाड़ू रखो और किताब लेकर बैठो। आज तुम्हारा टेस्ट मैं खुद लूंगा। पढ़ाई करती भी हो या नहीं अभी पता चल जाएगा। कितनी लायक हो तुम? फातिमा ने फखरिया मुस्कुराहट के साथ नजरें उठाई और उसको देखते हुए बोली, ये बात आप भूल जाएं, बिना पढ़े भी मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन मैं पढ़ाई करती हूं और मैं बहुत अच्छी हूं पढ़ने में। आपको याद नहीं फर्स्ट ईयर में कितने अच्छे नंबर लिए थे मैंने? बाबा ने मुझे कितनी शाबाशी दी थी और पार्टी भी दी थी। वो उसकी तरफ देखकर थोड़ा नरम लहजे में बोला, हाँ याद है। अच्छा चलो अब जाओ, मैं आ रहा हूं 10 मिनट में। उसका कमरे में होना न जाने इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर कर रहा था। फातिमा ने एक नजर उस पर डाली। अब वो नॉर्मल अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया था, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। वो झाड़ू एक तरफ रखते खामोशी से पलटी और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो हमदान ने आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। दिल में एक खफीफ सी कसक उभरी। इस लड़की की मौजूदगी जैसे उसके कमरे में कुछ और भी ले आती थी, कुछ बेनाम सा सुकून या शायद खलल। वो नहीं जानता था, लेकिन उसकी मौजूदगी इसके लिए सुकून थी, ये बात तय थी। 1.5 हफ्ते बाद कमरे में हल्की सी रोशनी थी। दीवार पर घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता वक्त की पेशरफ्त का ऐलान कर रही थी। फातिमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, गोद में खुली किताब और नजरें अल्फाज पर थी, लेकिन जहन कहीं और भटक रहा था। 2 दिन से जाहिद साहब और समरीन बेगम घर पर नहीं थे। दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था। वो दोनों एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे। जब भी कोई बिजनेस ट्रिप होता, जाहिद साहब अपनी बेगम अपने साथ लेकर जाते, और वो इस दौरान हवेली में कम ही जाया करती थी, इसीलिए अभी क्वार्टर में ही लेटी हुई थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा एकदम जोर से खुला और रुखसाना खाला हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर कर्ब की शिद्दत नुमाया थी। वो अंदर आते ही बेसाख्ता बोली, फातिमा बेटी, तुम एक बार फिर यतीम हो गई। फातिमा का दिल धक से रह गया। वो तेजी से उठकर बैठी, आंखें फैल गईं। क्या क्या कह रही हैं रुखसाना खाला? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बेजार लहजे में बोली। ऐसी बातें भी उसका खून रोक देती थी। रुखसाना बेगम आंखों के किनारे पहुंचते हुए रुंधी आवाज में बोली, हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ। गजब हो गया, तुम पर कयामत टूट पड़ी, सब तबाह हो चुका है। जबकि उनके लहजे की नौयत समझते हुए वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और उनको देखते हुए बोली, क्या हुआ रुखसाना खाला? इस तरह से मत कहें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ हो गया है क्या? अम्मी बाबा ठीक है ना? उसे हमेशा की तरह सबसे पहले उन्हीं का ख्याल आया,
जबकि वो रोते हुए बोली, बेटा, बड़े साहब और बड़ी बेगम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। दोनों मौके पर ही दुनिया से चल बसे। हमदान साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है घर की फौरन सफाई कर दी जाए और तुम्हें इत्तला दे दी जाए, और कहा है कि तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा की आंखें जैसे पल भर में खाली हो गई, जिस्म सुन्न होने लगा, सांस लेना दुश्वार हो गया। उसने जोर से चीख मारी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। मेरी अम्मी बाबा को कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो मुझे इस तरह तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा ने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, मुझे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो इस तरह मुझे तन्हा नहीं कर सकते। मेरा उनके अलावा कोई नहीं है। खाला उन्हें बुलाएं, मैं मर जाऊंगी, मुझे सांस नहीं आ रही। वो दीवाना वार दरवाजे की तरफ लपकी, रुखसाना खाला के हाथ से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कदम पर दिल जैसे चीख रहा था। वो भाग जाना चाहती थी इस घर से, इस दुनिया से। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। वो रदारी में पहुंची ही थी कि अचानक सामने से आते हमदान ने उसे जोर से थाम लिया। वो महज उसी की वजह से सर्द खाने जाने के बजाय सीधा यहाँ आ गया। उसे मालूम था इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बुरी तरह रो रही थी। उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, आप झूठ बोल रही हैं, अम्मी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मर जाऊंगी। मैं दोबारा यतीम नहीं होना चाहती। मेरा कोई नहीं है उनके बगैर। मेरा क्या बनेगा? मुझे मेरे बाबा अम्मी चाहिए। खुदा के लिए कुछ करें, मैं मर जाऊंगी। वो वाकई सांस नहीं ले पा रही थी। जिन्हें अपना सब कुछ माना था वो उसे छोड़कर चले गए थे, और ये ख्याल ही उसकी जान ले रहा था। हमदान कुछ नहीं बोला, बस उसे अपने सीने से लगा लिया। वो चीखती रही, खुद को छुड़ाती रही, छोड़ो मुझे, मेरे अम्मी बाबा को बुलाओ, वो कहाँ हैं? उन्हें कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो जब्त किए खड़ा रहा। उसके कंधे पर सर रखे वो सिसक सिसक कर रोती रही। हमदान के अपने माँ बाप थे वो, उसका अपना सब कुछ बिखर गया था। लेकिन वो मर्द था, उसे सब संभालना था। वो इसी तरह टूट नहीं सकता था। उसके अंदर भी तूफान था, मगर आंखें खुश्क थी। फातिमा की आवाज उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन उसी लम्हे वो बस एक सहारा था, फातिमा के लिए, अपने लिए, और इस घर की अब बच्ची कुची सांसों के लिए। खामोशी में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, गम, जुदाई और बेयकीनी की चीखें। 1 महीने का वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक कयामत आई थी खानजादा हवेली पर, जो 2 वजूदों को तोड़ कर रख चुकी थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे हर चीज रुकी हुई हो, साकित और बेजान। 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन दुख का जख्म अभी भी तरोताजा था। फातिमा अब ज्यादातर अपने कमरे तक महदूद हो गई थी। वो पहले जैसी चहकती, हंसती, बोलती फातिमा बस अब सन्नाटे में लिपटी एक खामोश सी लड़की बन गई थी। कुछ देर पहले रुखसाना खाला की बेटी आई थी, एक पैगाम लाई। हमदान साई ने अपने कमरे में बुलाया है। उसने लंबी सांस ली, दिल में अनजाना सा बोझ लिए, दुपट्टे को संभाला और दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ लम्हे रुकी, फिर हल्के से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। वो आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। कमरा वही था, वही खुशबू, वही तरतीब, लेकिन फिजा कुछ और थी, बोझल, थमी हुई। हमदान सोफे पर बैठा था, दीवार को यकटक घूर रहा था। फातिमा चंद कदम अंदर आई, दुपट्टे को मजबूती से थामे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। हमदान साईं, आपने बुलाया था? वो जैसे ख्यालों से निकला हो, आहिस्ता से सर उठाया और उसे एक नजर देखा। उसकी आंखों में वीरानी साफ झलक रही थी। वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही थी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? सवाल मामूली था, मगर आवाज में बेरुखी नहीं थी। फातिमा नजरें झुकाए आहिस्ता से बोली, मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो पढ़ना था पढ़ लिया। हमदान की भवें सुकड़ गई। और ये फैसला लेने वाली तुम कौन होती हो? वो चौंकी, नजरें उठाकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं इस घर की मुलाजमा हूं, मुझे अपनी हैसियत याद है। मेरी पढ़ाई का खर्चा बाबा उठाते थे, अब वो नहीं रहे तो मैं किसके सहारे पढ़ूं? और वैसे भी मुझ में अब वो हिम्मत बाकी नहीं रही जो पहले थी।
हमदान अपनी जगह से उठा, कदमों की चाप सुनाई दी और वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। बाबा का बेटा जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम कह रही हो कि हिम्मत नहीं रही। 2 थप्पड़ लगाऊंगा तो सारी हिम्मत वापस आ जाएगी। फातिमा ने हैरत से आंखें फैलाई। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे वही फिक्र छुपी थी जो एक वक्त जाहिद साहब की आंखों में दिखती थी। हमदान साईं, वो आहिस्तगी से बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? वो एक लम्हे को चुप हो गया, फिर आहिस्तगी से बोला, क्योंकि बाबा ने मुझे सिर्फ ये हवेली नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी भी दी है, और मैं इस जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। कमरे में खामोशी छा गई थी। फातिमा का सर झुक गया और आंखें भीगने लगी। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन हमदान पहले बोल पड़ा। कल से तुम अपनी क्लासेस रेगुलर लोगी। मैंने कॉलेज में तुम्हारी फीस जमा करा दी है। कपड़े, किताबें सब तैयार होंगे, तुम बस हाँ कहो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसने गहरी सांस ली, आंखों में संजीदगी, आवाज में गहराई लिए बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया अपना सकता हूं, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जब मेरा रवैया सख्त होगा तो तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। और तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले एक बार मुझसे कहा था, हमदान, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फातिमा का ख्याल रखना, इसे तन्हा मत छोड़ना, इसके ख्वाबों को पूरा करना। क्या तुम अपने बाबा के ख्वाब को पूरा नहीं करोगी? फातिमा ने नजरें उठाई, उसकी पलकें नम थी। चंद लम्हों बाद वो मध्यम बोझल लहजे में बोला, और फातिमा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं मालूम ये सब तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जज्बात रखने लगा हूं। आज से नहीं, जब से अम्मी बाबा जिंदा थे तब से। फातिमा के चेहरे पर हैरत और खामोशी थी, जैसे अल्फाज समझने से पहले दिल को संभालना चाह रही हो। हमदान रुक कर बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, ना अपने दिल की बातें, ना वो एहसासात जो मैंने बरसों छुपाए। सच कहूं तो मैं हमेशा तुमसे इनसिक्योर रहा। मैं इकलौता बेटा था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन जब तुम आई सब बदलने लगा। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर मध्यम आवाज में बोला, पहले मुझे लगा तुम मुझसे सब छीन रही हो, लेकिन बाद में समझ आया कि तुम तो वो कमी पूरी कर रही हो जो मेरे पास कभी थी ही नहीं। फिर मैंने समझा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। फातिमा की पलकों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करना, मुझसे नजरें चुरा लेना मुझे आग लगा देता था, इसीलिए मैं उल्टी सीधी बातें करता था, तुम्हें दुख देता था। मैं बहुत खुदगर्ज था फातिमा, लेकिन जब से मेरे माँ बाप गए हैं तब एहसास हुआ कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो किस दुख से गुजरते हैं। उसकी आवाज टूटने लगी थी। तब समझ आया तुम उनसे इतना करीब क्यों थी। तुम उनमें अपने माँ बाप देखती थी और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत देता रहा। वो उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, मैं अपने हर लफ्ज, हर रवैये की माफी मांगता हूं फातिमा। मैं चाहता हूं हम एक नई जिंदगी शुरू करें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? कमरे में मुकम्मल सकूत छा गया। सिर्फ फातिमा की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर होंठ कपकपाते हुए बोली, ये सच है कि मेरे माँ बाप नहीं थे। मैंने उनके वजूद को हमेशा तरसा। फिर अम्मी बाबा ने मुझे अपनी बाहों में पनाह दी और मैं उन्हें ही अपने माँ बाप समझ बैठी। उसकी आवाज भर्रा गई। आज जब वो मुझसे बिछड़ गए हैं तो बस मैं ही जानती हूं कि ये दुख क्या होता है। मैं अंदर से खाली हो गई हूं हमदान साईं, लेकिन अगर कोई इस खला को भर सकता है तो वो आप ही हैं। कहीं ना कहीं मैं भी आपको पसंद करती हूं। जब वो सच बोल सकता था तो वो भला क्यों अपने दिल के जज्बात छुपाती। उसने नजरें उठाकर आंखों में आंखें डालकर देखा और आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, मैं आपकी बीवी बनूंगी। हमदान ने आगे बढ़कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मैं तुम्हें कभी दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा फातिमा। अब ये जिंदगी हमारी होगी, मिलकर, बराबर होकर। और जैसे ये लम्हा ठहर गया हो,
दो बिखरे वजूद आखिरकार मुकम्मल हो गए थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।